Hi guys, this is Nanda Rawat from Track Veda, and today we are making this video to bring you the travel tips for Char Dham Yatra, help you efficiently to pack your things, to manage your things and make you prepare for the Char Dham Yatras. First topic that we will discuss in things to carry is about your clothing, that what clothes you have to carry for your yatras. So guys, जब भी आप अपनी पैकिंग करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, आइदर आप अपने सर से शुरू कीजिए एंड आप अपने पैरों पे एंड कीजिए, या तो पैरों से शुरू कीजिए और सर पे एंड कीजिए. तो वी विल डिस्कस कि हम सर से लेकर पैर पे जाते हैं. तो गाइस डिपेंड्स कि आपकी एज क्या है यात्रा में. सो अकॉर्डिंगली यू मेक योर थिंग्स, यू पैक योर थिंग्स अकॉर्डिंगली. अगर इफ यू आर सीनियर सिटीजन देन यू नो लाइक cap, the woolen cap has to be there, the sun cap has to be there, right? And the hat, you can carry the hat as well. Then you come to your neck area. Then for neck area you can carry the balaclava, or you can carry mufflers. Or if you are a senior citizen, you know, like, you know, the monkey cap comes, so that helps a lot. And accordingly, when you go down your neck, then the inner has to be there. You should carry a thermals with you, some shirts, some sweatshirt and t-shirts as well, but make sure that you should have the slips with you. This slips will protect you from sunburn screen and also will help you from the bugs bite as well, and sometimes there are mosquitoes, so this will definitely help you. Carry some fleece with you, and the jackets are must. You know, like when you are in Gangotri, Yamunotri or in Kedarnath, then definitely the cold wind will be there. Mornings and evenings will be cold there, so you should carry some sweaters, some jackets there. And yeah, then we go to you know, like, you go lower your waist, then again thermal for the inner part, and then you can carry jeans pant, you can carry your shorts. But when you are tracking, when you will track to Kedarnath temple, then the jeans would not work. So there, in that case, you should carry some sports trouser or track pants, you know, that will help you comfortably track or walk to the Kedarnath temple. And if you talk about your fit toes, then warm woolen socks will help you in the evenings and morning, and also sports socks during the daytime. And guys, the sports shoes, but for walking, you know, like, you should have a trekking shoes with you which has a good grip. So make sure that you start from your head and check each and everything that you need. And this was a general basic idea to give you like what you should need there, because in Kedarnath, Badrinath, yeah, the temperature during the night and the morning will be colder, so be prepared accordingly. So guys, as we have already discussed about the clothing, अब हम कुछ और एक्सेसरीज की बात कर लेते हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए. तो जब आप अपनी पैकिंग करते हैं तो मेक श्योर कि आप अपना यू नो, लाइक, पिट्ठू बैग होता है, रक्षक टाइप, द बैक पैक जिसको बोलते हैं, आपने वो कैरी करना है इंस्टेड ऑफ सूट केस एंड ऑल. बिकॉज जब आप ट्रैकिंग पे करते हैं या पैदल चलते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं इंस्टेड ऑफ कैरिंग सूट केसेस, राइट. उसके बाद आप डेफिनेटली जब चार धाम यात्रा आते हैं तो जो वेदर है यहाँ का वो अनप्रिडिक्टेबल रहता है. तो गाइज बी प्रिपेयर्ड विथ योर अम्ब्रेलाज, रेनकोट और पॉन्चोज, ये आप डेफिनेटली कैरी कीजिए. एंड ग्लव्स भी आप अपने साथ रख लीजिएगा, क्योंकि शाम को बहुत ठंड होगी ऊपर गंगोत्री या केदारनाथ या बद्रीनाथ में, तो ग्लव्स आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा. एंड उसके बाद ड्यूरिंग द डे टाइम आपका काफ़ी सनी वेदर रहने वाला है, तो फॉर दोज यू शुड कैरी योर सन ग्लासेस विद यू. सो गाइज, now let's start the discussion on the toiletry items that one should carry with you during your yatras. तो guys, जो basic toiletries होने चाहिए आपके पास और आपकी पैकिंग लिस्ट में, वो होने चाहिए आपका, जैसे लाइक टूथब्रश हो गया, आपकी टूथपेस्ट हो गए, आपका टेल्कम पाउडर हो गया, सोप हो गया, एंड शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, टेल्कम पाउडर हो गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको आपके साथ कैरी करने चाहिए. यहाँ के होटल्स बहुत, अगर आपने डिलक्स होटल या लग्जरी होटल्स बुक करके है तो उसमें मिल सकता है, अदरवाइज द अदर होटल्स डज नॉट प्रोवाइड यू. तो इसलिए आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप लेके आए. और जो दूसरी बात है कि ड्यूरिंग द डे टाइम आपको सनस्क्रीन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे. एंड यहाँ पे 30+ SPF क्रीम जो है वो काम नहीं करेगी आपकी.
यहाँ पे सिर्फ 50+ SPF ही काम करेगी, बिकॉज यहाँ पे सन जो है ड्यूरिंग द डे टाइम वो बहुत ही हार्श होता है, सो 30+ इज नॉट गोइंग टू वर्क। उसके अलावा यू शुड कैरी द बग रिपेलेंट्स, ओडोमस, ये आपको चाहिए, बॉडी लोशंस आपको चाहिए to keep yourself protected from the bugs या mosquitoes. The other toiletry items that you should keep in mind is the tissue paper you should carry, wet wipes you should carry, the toilet papers you should carry, and along with that the bar towel is must. If you have face towel and hand towel, carry them along with you. Plus the hair dryer should not be available at all the hotels here, so for women's hair dryer is must. Carry your hair dryers. तो गाइस जो भी हमने डिस्कस किया है, इसके अलावा जो भी आप लोग डेली टाइम में यूज़ करते हैं तो वो भी आप अपना कैरी कीजिए, बट जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी ये तो मस्ट है, ये आप अपने साथ लेके आइए। एंड दिस आर द पैकिंग लिस्ट जनरल। तो आप लोग देखिए कि आपका और क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से आप अपना पैकिंग लिस्ट कर सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर योर यात्रा अकॉर्डिंगली। The very important part of your packing list is the medicines that you should keep in mind and you should carry during your यात्रा। अब आपको पता है कि आप जब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाते हैं तो बॉडी में चेंजेस तो आते हैं बिकॉज ऑफ द वाटर, एयर जो भी है, तो कभी आपको हेडेक हो जाता है, फीवर आ जाते हैं, तो उसके लिए लाइक आप डिस्प्रिन कैरी करिए अपने साथ, कॉम्फ्लेम आप अपने साथ कैरी करिए, पैरासीटामोल आप साथ में लेके आ सकते हैं। एंड जब आप ट्रैवलिंग में हो तो डेफिनेटली गाइज अपसेट स्टमक रहता है, तो उसके लिए लाइक डायरिया का जो मेडिसिन आता है, कैरी सम सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन, आप अपने ORS पैकेट्स आप साथ में लेके आ सकते हैं। एंड जो भी जो बेसिक दवाई है, जैसे बैंडेड हो गया आपका, और आपके मसल्स स्ट्रेन कर रहे हैं तो उसमें आपका जैसे मूव काम करता है, वॉलनी स्प्रेज आते हैं या मूव के भी स्प्रे आते हैं। तो जब आपको इतनी लाइक एक आप जब यात्रा में आ रहे हैं तो गाइज आपको इतनी चलने की आदत नहीं होती है, ट्रैवल करने की आदत नहीं होती है, तो समटाइम क्या होता है कि मसल स्ट्रेन कर जाता है वहाँ पे, तो मसल आपके बहुत पेन करने लग जाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ स्प्रे या मूव्स ये आपको उसमें हेल्प करेंगे। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट नोट दैट यू शुड कीप कि जो आपका इफ़ यू आर अ पेशेंट, लाइक अगर कोई बाई चांस शुगर का पेशेंट है, BP का पेशेंट है, और कोई भी पेशेंट है जो भी आपकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है बाई योर डॉक्टर, तो वो आप अपने साथ अपने टाउन से या अपने घर से वहाँ से ज़रूर अपने साथ कैरी करके लाइए। क्योंकि गाइज यहाँ पे क्या है कि पहाड़ों में व्हेन यू आर ट्रैवलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर इन अ रिमोट लोकेशन जहाँ पे केमिस्ट तो है, बट यू माइट नॉट गेट योर मेडिसिन दैट योर डॉक्टर हैज़ गिव रिटन फॉर यू, तो वो मेडिसिन आप अपने साथ में कैरी करके लाए। एंड गाइज एक चीज़ और बोलूँ, अगर आप लोग फैमिली में ट्रैवल कर रहे हैं, ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं गाइज, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा ना एक एक मेडिसिन फर्स्ट एड बॉक्स लेके आए। आप लोग अगर फैमिली में है, 10-12 जनों की फैमिली है, एक मेडिसिन फर्स्ट एड बॉक्स आप तैयार कीजिए। आपको खुद तैयार करने की, अगर आपको लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़, गो टू योर नियरेस्ट केमिस्ट शॉप, उनको आप बोलिए कि हमें एक जनरल फर्स्ट एड बॉक्स तैयार करके दीजिए, तो वो आपकी हेल्प कर देते हैं, वो आपको एक अच्छा सा फर्स्ट एड बॉक्स बना के दे देते हैं। एंड यू कैरी दैट फर्स्ट एड बॉक्स, दिस विल हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग योर यात्रा गाइज। तो कीप इन माइंड, आपकी जो मेडिसिन है जो भी चल रही है वो आप अपना साथ लेके चलिए। Guys, we are now going to talk about some other travel advisories while you are traveling on your yatra. The first point that we are going to cover is the ATM and the cash flows. So, like when you are starting your trip from either Dehradun or from Haridwar or Rishikesh, make sure you visit the ATMs, withdraw your cash, because when you are traveling to places like Gupt Kasi or Yamunotri or Gangotri or Kedarnath or Badrinath, you will find ATM at some places, but they will be most of the time cashless. So therefore like the cash is must with you, अपना साथ कैश रखिए। और यहाँ पे क्या है कि नेटवर्क कहीं पे नहीं आता है, तो like the UPIs does not work, therefore keeping cash with you is very important. The second important thing is about your fitness. So when you are traveling for Char Dham Yatra, right, or Kedarnath, Badrinath, or you are traveling into Uttarakhand or any hill station, make sure that like you should start your exercise 1 month prior. Keep a goal of 4 to 5 kilometers a day
इट कैन बी अ वॉक और इट कैन बी अ ग्रेजुअल रनिंग। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप 1 महीने 2 महीने से अगर प्रिपेयर होते हैं, अपने एक्सरसाइज जिम वगैरह रेगुलरली करते हैं, तो जब आप हिल स्टेशंस में आते हैं तो लाइक यहाँ पे क्या है कि कभी आपको चलना भी पड़ता है, ड्राइविंग तो होती है, बट लाइक कभी ट्रैक करना पड़ेगा, कभी किसी टेम्पल, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो टेम्पल्स होते हैं वो काफ़ी हाइट पे होते हैं, वहाँ पर रीच करने के लिए आपको थोड़ा स्टेमिना चाहिए होती है। सो आपकी बॉडी एग्जॉस्ट ना करे, एकदम आप कोलैप्स ना करे, इसलिए आपका एक्सरसाइज करना और आपका फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि 1-2 महीने से आप पर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा रनिंग का, वॉकिंग का। सो दिस विल कीप यू हेल्थी, दिस विल कीप यू फिट गाइज। और जब आप यात्रा पे आएंगे या ट्रैवल करने के लिए आएंगे तो यू विल डू इट विद ईज, तो वो बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। द थर्ड ट्रैवल एडवाइजरी दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि keep yourself hydrated guys. When you are traveling in the hills or wherever you are traveling, drink plenty of water. तो that will keep your body hydrated. अगर आप ट्रैवल जितना भी कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेंगी। तो बस जब आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो सुसु तो आएगी। तो उसके लिए जगह जगह पे यहाँ पे पब्लिक कन्वीनियंस बना रखे हैं एंड यू कैन यूज़ देम वाइजली, है ना। यहाँ वहाँ कहीं भी यूरिन नहीं करना है, कहीं भी हम गंदा नहीं करना है। तो मेक श्योर कि जो आपके डेजिग्नेटेड जगह बनाई गई है हर एक स्पॉट पे, तो उनका आप पब्लिक कन्वीनियंस का यूज़ आप आराम से कर सकते हैं। एंड कीप इट क्लीन, कीप इट सेफ। द नेक्स्ट टॉपिक गाइज कि डू नॉट use alcohol at all. Avoid alcohol while you are traveling. Quit smoking while you are traveling, because these are the things that will dehydrate your body badly. It will affect your body badly, जिसके कारण आपका पूरा ट्रिप रुइन हो सकता है, वो पूरा खराब हो सकता है। आप कुछ चीज़ अब एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे तो फिर क्या मज़ा ट्रैवल करने का। और इतने दूर से आप लोग आते हो तो कोई मतलब ही नहीं बनता जब आपकी बॉडी आपके साथ ना दे। तो गाइज ध्यान रखिए कि आप अल्कोहल ना कंज्यूम करें, आप स्मोकिंग ना करें यहाँ पे, और फिट रहना है, अच्छा से एक्सप्लोर करना है, तो आप अपने बॉडी को मेंटेन करके रखो यार। अब जब ट्रैवल करते हैं तो खाना कैसे खाना चाहिए आदमी को, एकदम लाइट खाना आप रखिए, ठीक है। अपने जो डाइट में है एकदम लाइट रखिए, चाहे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच या इवनिंग स्नैक्स। ज़्यादा हैवी फूड मत कीजिए। अगर आप इफ़ यू आर अ गुड ट्रैवलर, अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ये आपकी काफ़ी मदद करना वॉकिंग में, हाइकिंग में, ट्रैकिंग में, खाना आप वेजिटेरियन पहले प्रेफर कीजिए। हर कुछ मत खाइए जो भी आपको तला भुना वाला मिल रहा है पहाड़ों पे की, या चाय के साथ हम समोसा खा रहे हैं, या आप कचौड़ी खा रहे हैं, या जो भी आप तला हुआ चीज़ खा रहे हैं, वो अवॉइड कीजिए कुछ दिनों के लिए, जब तक आपकी बॉडी यूज टू नहीं हो जाती है। तो देखिए ये खाना का आप ध्यान रखिए। और पानी का ये है कि लाइक बोलते तो है कि पहाड़ों का जो हमारा पानी आता है वो एकदम प्योर होता है पानी, उसको फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है। पर फिर भी आप देखिए कि आप कहीं किसी और सिटी से आ रही है, हो सकता है आपकी बॉडी यूज टू ना हो, तो मिनरल जो वाटर होता है उसको आप स्टार्टिंग में प्रेफर कीजिए कि वो सील्ड पैक होना चाहिए, वही वो पानी आप कंज्यूम कीजिए। बाकी आप जब आपके गाइड आपके साथ हैं या आपका ट्रैवल कंपनी आपके साथ है, तो देखिए कि वो कहाँ से पानी भर रहे हैं। अगर बिल्कुल नेचुरल सोर्स है, एकदम साफ़ सुथरा है, हाँ, तो उसको एक कॉटन का कपड़ा लगा के उसको फिल्टर करके उसको पी सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब आप ट्रैवल करते हैं। तो ये खाने और पानी का जो है थोड़ा ध्यान रखिए। तो गाइस आप ये हमारी बात चल रही है खाने पे, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फूड। तो इसमें यह है कि यू शुड कैरी सम एनर्जी बार, प्रोटीन बार, एनर्जी ड्रिंक्स विथ यू। ये कहाँ पे काम आएगा कि हम जब यमुनोत्री में है, केदारनाथ जा रहे हैं, तो यमुनोत्री में 6 किलोमीटर का वॉक है, केदारनाथ में 16 किलोमीटर का वॉक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम वॉक करते हैं वो स्टिफ है तो बॉडी काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाती है। यहाँ पे हमें चाहिए एनर्जी, तो ये हमारे जो हम एनर्जी बार वगैरह की बात कर रहे हैं, ये वहाँ पे हेल्प करेगी। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे गाइज, तो डेफिनेटली जो आपका ट्रिप है, आप एग्जॉस्ट नहीं रहेंगे, आपका ट्रिप मेस्मराइजिंग जाएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए जब आप यात्रा पे आ रहे हैं। तो इस यात्रा ट्रैवल एडवाइजरी में अभी इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट्स है और आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ रीच आउट टू अस। वी आर अवेलेबल ऑन Instagram, Facebook. You can DM us, you can email us. We'll be happy to assist you. And till then, keep fit, stay healthy, keep exploring. Thank you for watching this video, and we'll see you in our next video.